اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 97 بائے اردو داستان۔ پہاڑوں میں لاتعداد گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ یہ لوئی کے آدمی تھے اور شیران کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ لوئی کئی روز سے ان پہاڑوں میں بھٹک رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شیران کہاں چلا گیا۔ اس کی مدبر شیران سے ہوئی تھی اور اس نے گولیاں بھی چلائی تھی، جس کے نتیجے میں لوئی کے کئی آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد شیران اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے زمین نکل گئی ہو۔ لوئی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کئی دن اور کئی راتیں سرگردہ رہنے کے بعد وہ کسی قدر مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ شیران اور سداشی کو تلاش کریں۔ اگر وہ نہ ملے تو پھر کوئی بھی بستی کا رخ نہ کرے۔ کنگ لوئی کی دیوانگی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ پتھروں کو چبا ڈالے۔ زندگی میں اس سے زیادہ اذیت ناک لمحے اسے کبھی نہیں برداشت کرنا پڑے تھے۔ ساری زندگی اس نے لوئی خاندان کا کھویا ہوا وقار بحال کرنے میں صرف کر دی تھی، اور جب وہ اس منصب تک پہنچنے کے لیے تمام مراحل طے کر چکا تھا تو ایک ایسے شخص نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا جو صرف اس پر مسلط کیا گیا تھا۔ وہ جب بھی شیران کے بارے میں سوچتا تو جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بالآخر اس نے پہاڑوں میں بھٹکنے والوں کو جمع کر کے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شیران کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کر دیے جائیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ چھوڑ رہا ہے، پھر وہ بھی ان کے ساتھ آ ملے گا، لیکن شیران کو اس علاقے سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھیوں نے خوفزدہ انداز میں اس کی ہدایت سن کر گردنیں جھکا دی تھی۔ وہ بیچارے بھی کیا کر سکتے تھے، ہر کوشش کر کے تھک گئے تھے۔ حالانکہ یہ ان کا اپنا علاقہ تھا، لیکن شیران نے انہیں اس طرح چکرا کر رکھ دیا تھا کہ وہ اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے تھے۔ وہ بستی سے کافی دور نکل آیا تھا، اس لیے واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے اسے تقریباً پورا دن لگ گیا۔ آدھی رات کو وہ بستی میں داخل ہوا اور پھر اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں سب نیند کے آغوش میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس نے لوگوں کو جگایا۔ اس کے خاص آدمی نے حالات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ معاملہ ٹھیک ہے کنگ۔ جہاں جہاں بروما خاندان کے افراد کو محصور کیا گیا ہے وہاں ہمارے آدمی سختی سے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن بوڑھا زاغل بروما خرابیاں پیدا کر رہا ہے۔ زاغل شاید ہم سے برگشتہ ہو کر برومیوں سے جا ملا ہے۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیشہ حق کی بات کہی، لیکن اس وقت وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے بوڑھا پاگل؟ لوئی نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ اس نے اپنے بے شمار ہمنوا پیدا کر لیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ برومیوں کو اس وقت تک حب سے بے جا میں نہیں رکھا جا سکتا جب تک لوئی اپنی صحیح حیثیت حاصل نہ کر لے۔ اس کے بعد بھی لوئی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ برومیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرے۔ اسے برومیوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا اور انہیں اپنے رائے کی حیثیت دینا ہوگی، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب لوئی اپنے قول کے مطابق بروما کی بیٹی کو قربان گاہ پر بھیٹ چڑھائے۔ اس سے قبل اس کی حکومت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ دوسری صورت میں مسئلہ عبوری حکمرانوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ زاغل مختلف علاقوں میں تقریریں کرتا پھر رہا ہے۔ چونکہ اس کی تقریریں مدلل ہوتی ہیں اس لیے لوگ ان کی تردید نہیں کر پاتے۔ ہمارے آدمی نے ایک بار زاغل کے ایک مجمع کو منتشر کرنے کی کوشش کی تو خاصی خونریزی ہو گئی۔ تقریباً 20 افراد مارے گئے، جن میں 14 آدمی ہمارے تھے اور 6 برومی خاندان کے۔ یہ صورتحال ہے کنگ۔ ہم لوگ آپ کے لیے پریشان تھے، خاص طور پر آپ کا نائب اور دوست لائش بہت مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے بے شمار دشمن پیدا ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں برومی پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ لوئی غرایا، یہ زاغل میرے انتقام سے نہیں بچ سکے گا۔ موت کے نزدیک پہنچ کر بھی وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ کس کی مجال ہے کہ اب وہ لوئی سے حکومت چھین سکے؟ بروما کی بیٹی کو میں دربار عام میں پیش کر چکا ہوں اور اس کی حقیقت واضح ہو چکی ہے، اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اسے حاصل کر لیا تھا۔ صبح میں دربار عام میں جاؤں گا اور لوگوں کو طلب کروں گا۔ تم صبح 6 بجے لائش کو میرے سامنے پیش کرو، میں اسے مزید ہدایات دوں گا، لوئی نے کہا، اور اس کے خادم نے گردن جھکا دی۔ یہ حالات لوئی کے لیے بہت پریشان کن تھے۔ اس کا ذہن ایک پکتا ہوا پھوڑا بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اس نے ایک فیصلہ کیا، پھر اپنی رہائش گاہ کے ایک تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ اس تہہ خانے کے بارے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ تہہ خانے میں پہنچ کر اس نے پتھر کی ایک بہت بڑی سیل کو ہٹایا۔ پتھر کی سیل کے پیچھے ایک عظیم الشان ٹرانسمیشن نظام موجود تھا۔ اس ٹرانسمیٹر پر ہزاروں میل دور رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ لوئی مصروف عمل ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹرانسمیٹر پر سینکڑوں روشنیاں تڑپنے لگی۔ پھر اس کے اسپیکر پر ایک آواز ابھری، ہیلو ہیلو Y3 ڈپارٹمنٹ برانچ، کیا کنگ لوئی نے رابطہ قائم کیا ہے؟ ہاں میں لوئی بول رہا ہوں اور میڈم ایڈنا ڈمپل سے بات کرنی ہے۔ لوئی، میڈم ڈمپل اس وقت اپنی آرام گاہ میں ہے۔
उनसे कहो कि इस वक्त उन्हें कॉल करने का मतलब यह है कि बहुत ही अहम काम है। लुई ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। बेहतर है, उन्हें आपकी ख्वाहिश से आगाह किया जा रहा है, थोड़ी देर तवक्कुफ करें। लुई इंतजार करता रहा। तकरीबन 5-6 मिनट के बाद एडना डिम्पल की आवाज़ सुनाई दी। हेलो किंग लुई। मैडम, लुई बोल रहा हूँ। खैरियत किंग, क्या कोई ख़ास बात हुई है? तुम्हारी तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ। जो फितना मैं तुम्हारे हवाले कर आई हूँ वो मेरे लिए भी बाइस तशवीश है। मैडम, इस वक्त मैं इज़्ज़त व एहतराम के अल्फाज तलाश नहीं कर सकता। मेरे जहन में जहन्नुम सा लग रहा है। मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। कहो भाई कहो, क्या बात है? वो ज़्यादा परेशान मालूम हो रहे हो। मैडम, मुझे कहा गया था कि जो शख्स तंजीम में शामिल हो जाता है उसके ज़ाती मुफादात ज़ाती नहीं रहते, बल्कि तंजीम उनमें बराह रास्त दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो जाती है। मैंने इस पर यकीन कर लिया था। आपको इल्म है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि मैं तंजीम की खिदमत करूँ और उनके झूठे बर्तन चाटता रहूँ। हम पत्थरों के बासी हैं और अपने मामला ज़्यादातर खुद ही हल कर लिया करते हैं। मैंने तो सोचा था कि तंजीम की क़ुव्वत हासिल करने के बाद मैं लू के इलाके को वुसअत दूंगा। मैडम डिम्पल, हर हुक्मरान की ख्वाहिश होती है कि इसकी नस्लें बरकरार रहें और हुक्मरानी करते रहें। मैंने तंजीम से वफादारी का इकरार इसीलिए किया था कि मेरे मामलात पर पूरी तवज्जो दी जाए, लेकिन तंजीम मेरी तरफ से गाफिल है। आज तक आपको ये क्यों नहीं मालूम हो सका कि मैं किस परेशानी का शिकार हूँ? ये भी हकीकत है मैडम डिम्पल के हम अपनी परेशानी पर खुद ही काबू पाते हैं, लेकिन जो मुसीबत तंजीम की तरफ से मुझ पर नाजिल की गई है उसके लिए मैं आपसे शिकायत करने में हक बजानिब हूँ। लुई, तुम बहुत परेशान लगते हो। यकीनन तुम्हारा इशारा शीरान की तरफ है। वो नास पास नाहंजार इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। हम वहशी शेर को भी सुता सकते हैं, जंगली हाथी हमारे मुती हो जाते हैं, लेकिन शीरान एक ऐसा जानवर है जो शायद किसी चीज़ से मुतासर नहीं होता। दोस्ती का जज्बा इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। क्या हुआ है? तुम असल बात क्यों नहीं बताते? एडना डिम्पल परेशान लहजे में बोली। सुधाशी को मैंने बड़ी मेहनत से हासिल किया था मैडम। आपको इल्म है कि इसके हुसूल के लिए मुझे एक तवील ड्रामा करना पड़ा था। फिर मैं उसे लेकर अपने कबीले आ गया और ऐलान कर दिया कि मैंने वो तमाम शराइत पूरी कर दी हैं जो लुई ख़ानदान का वकार बहाल करने के लिए ज़रूरी थी, और ब्रोमा की बेटी की कुर्बानी देने के बाद मेरी हुक्मरानी मुकम्मल हो जाएगी। मगर मुझे इल्म नहीं था कि तंजीम में शमूलियत मेरे लिए मुस्तकबिल के रोशन दरवाजे बंद कर देगी। हुआ क्या? शीरान चूँकि सुदाशी को पहाड़ों से लेकर आया और उससे दुश्मनी थी, लिहाजा वो सुदाशी को खुद अपने हाथों कत्ल करना चाहता था। मैंने उसे पेशकश की कि वो कुर्बान गाह पर सुदाशी को कत्ल कर दे ताकि हम दोनों का मकसद पूरा हो जाए, लेकिन वो वैशी ना माना। उसने कहा कि वो सुदाशी को मेरे लिए नहीं बल्कि ज़ाती तौर पर कत्ल करेगा। अगर उसने सुदाशी को मेरे लिए ज़िबा कर दिया तो वो ज़िंदगी भर इस अजियत के शिकार रहेगा कि उसने अपना इंतकाम नहीं लिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कमबख्त लोमड़ी की तरह चालाक निकला। मुझे धोखा देकर सुदाशी को निकाल ले गया और पहाड़ों में जा छुपा। अब मेरे तमाम मामलात पसे पूछ जा पड़े हैं। मेरे कबीले में मेरा मजाक उड़ रहा है और दुश्मन बगले बजा रहे हैं। मैं कामयाबी के करीब पहुंचकर नाकामी से हमकिनार हो गया हूं मैडम। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कामयाबी को हासिल करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। अगर अब मैं उसके हुसूल में नाकाम रहा तो दुनिया मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लुई ख़ानदान को हमेशा के लिए गारों में जाना पड़ेगा और हम कभी इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकेंगे। लुई खामोश हो गया। अब तुम क्या चाहते हो? एडना डिम्पल बोली। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मादाम कि मुझे शीरान को कत्ल करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अब वो मेरे मुस्तकबिल का कातिल बन गया है। लुई ने दांत पीसते हुए कहा। ओह, तुम्हारी परेशानी बिलाशुबा काबिल गौर है। तुमने जो कुछ बताया है वो बेहद ख़तरनाक है। लेकिन लुई, मैं ज़ाती तौर पर तुमको शीरान के कत्ल की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम इसे ज़ख्मी कर सकते हो, उसके हाथ पांव तोड़ सकते हो, इस तरह के वो इलाज से सेहतयाब हो जाए, लेकिन तुम्हें उसके कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो तंजीम की एक अहम ज़रूरत है। मादाम, मैं आपके इस हुक्म को नहीं मान सकता, ख़्वाह इसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। लुई, तुम तंजीम से इकरार कर चुके हो कि हमेशा अपने मुफादात पर उसके मुफादात को तरजीह दोगे। एडना डिम्पल के लहजे में दुरुस्तगी आ गई। घाऊच, उसने गुर्राई आवाज़ में कहा। हाँ, मैंने इकरार किया था और तंजीम ने मुझे इत्मीनान दिलाया था कि वो मेरे मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तंजीम ने यह भी कहा था कि वो लुई ख़ानदान की हुक्मरानी बहाल कराने में उसकी मदद करेगी। क्या ये मैं मालूम कर सकता हूँ मादाम कि शीरान सुदाशी को लेकर कहाँ रुपोश हो गया है? तंजीम कितने अरसे में सुदाशी को बरामद करके मुझ तक पहुँचा देगी? और क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि अगर शीरान ने सुदाशी को अपने इंतकाम का निशाना बना लिया तो तंजीम नई सुदाशी को किस तरह जन्म देगी? लुई के लहजे में बेपना तंज था।
इसके बावजूद तुम्हें शीरान की हिफाजत करनी है लुई। घाऊच। लुई फिर इस अंदाज में धाड़ा, मैं गधा नहीं हूं कि सायों के पीछे भागता फिरूं। लुई देखो, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है कि शीरान को तुम्हारे हाथों कोई नुकसान न पहुंचे। मुझे कौन रोक सकता है? शीरान की मौत से कबल मैं तंजीम से अलहदगी इख्तियार किए देता हूँ और ऐलान करता हूँ कि अब तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, शीरान की मौत के बाद तंजीम अगर चाहे तो मुझसे राब्ता कायम कर सकती है, इसके अलावा और कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। किंग लुई ने घोंसा मारकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। दूसरी तरफ सवालिया रोशनियां जलती बुझती रहीं। एडना डिम्पल उससे कुछ और बात करना चाहती थी, लेकिन लुई ने एक जोरदार ठोकर मारकर उसकी तमाम रोशनियां बुझा दी। फिर वैशन अंदाज में पलटा और तेजी से चलता हुआ तहखाने से बाहर आ गया। बिलाखिर वो सुरंग के दहाने पर पहुंच गए। चूंकि भी तारीकी फैली हुई थी और दूसरी तरफ के इलाके के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, चुनांचे शीरान ने फैसला किया कि रात का बाकी हिस्सा सुरंग के दहाने पर गुजारा जाए। पता नहीं दूसरी तरफ क्या हो, बेहतर यह है कि दिन की रोशनी में इस इलाके का जायजा लिया जाए। ठंडी ठंडी हवा इस वक्त बड़ी फरत बख्श मालूम हो रही थी। शीरान ने सुदाजी का बाजू दबाकर आहिस्ता से कहा, मुझे एहसास है कि तुम बुरी तरह थक गई हो। शीरान, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे अंदर ऐसी तब्दीली पैदा हुई है। बैठ जाओ। बैठकर यकीन करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती, शीरान ने तमस्खुराना अंदाज में कहा। लेकिन सुदाशी कुछ इस तरह जज्बात से सरशार थी कि उसे शीरान के लहजे में कहीं कोई खोट नजर न आई। वो बैठ गई। दूसरी तरफ नहीं चलोगे? नहीं। क्यों? सुदाशी ने पूछा। दिन की रोशनी में देखेंगी कैसा इलाका है। अभी हमारे दुश्मन हमसे ज़्यादा दूर नहीं। सुदाशी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शीरान की मोहब्बत में सरशार नजर आ रही थी। शीरान, सुदाशी ने रजती आवाज़ में कहा, कम अज़ कम मुझे यकीन तो दिला दो कि जिस कैफियत का इजहार तुम कर रहे हो वो मसनूई नहीं है। तुम मेरे कान खाने से बाज नहीं आओगी। कौन सी कैफियत की बात कर रही हो? शीरान ने पूछा। यही कि तुम मेरे दुश्मनों को अपना दुश्मन कह रहे हो। तुम मेरे लिए लुई से दुश्मनी मोल ली है। अगर तुम वहाँ से निकालना लाते तो वो दरिंदा सिर्फ यकीनन मुझे ज़िबा कर देता। इस वक्त तो मार्लिनो भी मेरी मदद नहीं कर सकता था। सुदाशी, मार्लिनो से कब से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? होती रहती थी, अभी कुछ अरसा कबल हुई थी। अच्छा, एक बात बताओ। पूछो, सुदाशी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तुम मुझसे अलग होने के बाद बैंकॉक में किस जगह रुपोश हो गई थी? मैं बैंकॉक में थी ही नहीं। शुरू में तो मार्लिनो के पास कांगहू चली गई थी। मार्लिनो ने मुझे समझाया। इस वक्त मुझे तुम पर शदीद गुस्सा था। शीरान, तुमने मेरे साथ सलूक ही ऐसा किया था। बताओ, क्या मैं सलूक की मुस्तहिक थी? मैंने तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी का महवर बनाकर बरसों चाहा है, अब भी चाहती हूँ। बाबा चाहता था कि मैं गोसान से शादी करके तमाम उम्र इन्हीं पहाड़ों में गुजार दूँ, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए कभी ऐसे जज्बात पैदा नहीं हुए। हालांकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था। गोए लुई ने जो कहा वो हकीकत नहीं थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि अतान बुरोमा गोसान को लुई बस्ती में वापस नहीं लाना चाहता था। नहीं, बाबा कहता था कि ज़िंदगी सिर्फ हुक्मरानी का नाम नहीं, हुक्मरानी तो जंगली जानवरों पर भी की जा सकती है। बाबा ने फैसला किया था कि मुझे और गोसान को इन्हीं पहाड़ों में आबाद कर दिया जाए। तुमने देखा, वो इलाका हर तरह की गंदगी से पाक था। मुझे भी वो इलाका बेहद पसंद था, लेकिन शीरान तो मेरी ज़िंदगी में न जाने कहाँ से आ कूदे। सुदाशी नाज से बोली। हाँ, कभी कभी तकदीर ऐसे ही फैसले करती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं खामखा तुम्हारी उस पुरस्कून दुनिया में हलचल पैदा करने आ गया। अगर मैं वहाँ ना पहुँचता तो तुम सुकून से ज़िंदगी बस कर रही होती। शीरान ने मुस्कुराकर कहा। कैसे ना पहुँचते? मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच ही लाई। क्या तुम इस पर भरोसा नहीं करते? मैंने कहा ना सुदाशी, मैंने कभी इन फजूल बातों के बारे में नहीं सोचा। अब भी इन्हें फजूल बातें कहोगे? हाँ सुदाशी, मेरे नज़दीक ये फजूल बातें हैं, शीरान ने कहा। नहीं शीरान, ऐसा मत कहो। क्या दर हकीकत तुम मुझे कत्ल कर देना चाहते हो? अगर इसका जवाब असबात में दूँ तो शीरान, मैं खुशी से तुम्हारे हाथों मर जाना पसंद करूँगी। बकवास मत करो। कोई खुशी से किसी के हाथों कत्ल होना पसंद नहीं करता। शीरान के लहजे में गुर्राहट पैदा हो गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सुदाशी के लहजे में भी हल्की सी गुर्राहट का एहसास होने लगा। शीरान ने एक बार खुद को संभाल लिया। चल लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला, सुदाशी, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम बात टाल रहे हो शीरान? हाँ, मैं बात टाल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे कहे हुए का एहतराम करना चाहिए। तुम एक दफ़ा कहो तो सही, उसके बाद मैं हमेशा के लिए अपनी ज़ुबान बंद कर लूँगी। सुदाशी ने प्यार भरे लहजे में कहा। ओ, कैसी अहमक होती हैं ये लड़कियाँ, वो दावे करते हैं जिन पर कभी पूरा नहीं उतर सकती। नहीं शीरान, ऐसी बातें मत कहो। तुम एक बार मुझे आजमा कर तो देखो। जब वक्त आएगा देख लूँगा। फिलहाल मैं बेमकसद बातों में उलझना नहीं चाहता। मुझे कुछ सोचने दो। क्या सोच रहे मुझे बताओ। यही कि क्या मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए या तुम्हें कत्ल कर देना चाहिए? तुम खुदकुशी ना करो, बल्कि मुझे कत्ल कर दो। सुदाशी बदस्तूर मोहब्बत भरे लहजे में बोली। ओ बाबा, माफ़ कर दो मुझे। शीरान झल्लाए हुए अंदाज में हाथ जोड़कर बोला।
अगर अब भी खामोश न रही तो मैं सच में तुम्हारी गर्दन दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। गर्दन हाजिर है, दबाकर देखो, अगर मैं जुम्बश भी कर जाऊं तो, सुदाशी ने कहा, और शिरान दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगा। सुदाशी आहिस्ता से हंस पड़ी, फिर बोली, माफ़ करना शिरान, मैं आज बहुत खुश हूँ और इस खुशी में बहुत सी बकवास करना चाहती हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब? मार्लिन ने तुमसे क्या कहा था? कुछ नहीं। उसने मुझे समझाया था कि जब शिरान तुम्हारी ज़िंदगी का महवर है, तुम्हें किसी हालत में उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर उसने मुझे बैंकॉक भेज दिया। मैं बैंकॉक में ही मुकीम थी। वो जब भी बैंकॉक आता मेरे पास ही काम करता था। मुझे बहुत चाहता है, बहुत ही नफीस इंसान है। शिरान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, इसका मकसद है कि मार्लिनो तुम्हारी रहायका से वाकिफ़ था। वाकिफ़ क्या? उसने तो मेरे लिए ब्रीनो क्वाय वाली एक कोठी मुंतखब की थी। ब्रीनो क्वाय, और इसी कोठी में किंग लुई ने तुम्हें अगवा किया था। हाँ, मैं वहीं रहती थी। क्या ग्रीचर और मैग्नीशिया भी तुम्हारे बारे में जानते थे? शिरान ने पूछा। जानते थे, लेकिन मार्लिनो ने हदायत कर दी थी कि तुम्हें इस बारे में कुछ न बताया जाए। ओह, ये गलत हुआ। मार्लिनो को मुझसे ये गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। ओह शिरान, समझने की कोशिश करो। सुदाशी जल्दी से बोले, बकवास बंद करो। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। जब उसे मालूम था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बताया? अरे इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? अगर उस वक्त तुम मुझे गुस्से में कत्ल कर देते तो आज तुम्हारी सुदाशी तुम्हें कैसे मिलती? शिरान खामोश हो गया। मार्लिनो ग्रीचर सुदाशी के लिए उसके दिल में गुस्सा पैदा हो गया था। हालांकि मार्लिनो ऐसा आदमी नहीं था जिस पर गुस्सा किया जाता। रोज़ ज़मीन पर वो एक शख्स था जिसे शिरान पसंद करता था, लेकिन वो अपनी फितरत का क्या करता जो ज़रा सी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सुदाशी भी खामोश हो गई। न जाने उसके जहन में क्या क्या ख्यालात थे। शिरान भी खामोशी से आने वाले वक्त के लिए मनसूबाबंदी करने लगा और थोड़ी देर बाद सुरंग के दहाने से उजाले की किरणें अंदर रेंगने लगी। मैं बाहर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेता हूँ, शिरान ने सुदाशी की तरफ देखते हुए कहा। अगर वो ख़तरा ना हुआ तो हम दोनों इस तरफ चलेंगे। ठीक है, सुदाशी ने जवाब दिया और शिरान सुरंग के दहाने से निकल आया। दूसरी तरफ का मंजर देखकर शिरान की आंखें हैरत और दिलचस्पी से चमक उठी। ये इलाका जन्नत नज़ीर था। तहद निगाह दरख्त बिखरे हुए थे जिनकी जड़ों में चट्टानें भी उभरी हुई थी। जगह जगह जंगली फूलों के बेतरतीब कुंज नजर आ रहे थे। मौसम बेहद खुशगवार था। हवा में नमी कुर्ब ज्वार में पानी की मौजूदगी का पता देती थी। शिरान आगे बढ़ता रहा, फिर एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर उसे दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन पानी कहीं नजर न आया था। वो काफ़ी देर तक इधर उधर देखता रहा। फिर उसने एक दरख्त का इंतखाब किया और इस पर चढ़ने लगा। दरख्त की आखिरी शाख पर पहुंचकर उसने दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई। छोटे छोटे जानवर कुलीले करते फिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक किसी बस्ती का नामो निशान ना था। वो मुस्कुराता उतर आया, फिर बड़बड़ाने लगा, वाह सुदाशी, यहाँ तो तेरी मौत भी इंतहाई हसीन होगी। वो सुरंग के धाने पर पहुंचा सुदाशी को आवाज़ें देने लगा। चंद लम्हों बाद सुदाशी बाहर आ गई। क्या महसूस किया? कैसा इलाका है? सुदाशी ने पूछा। अपनी आंखों से देख लो, शिरान ने जवाब दिया और सुदाशी मुस्कुराने लगी। वो पुरमुसर्रत निगाहों से चारों तरफ देख रही थी। आह, मैंने ऐसे हसीन इलाके के ख्वाब देखे थे। शिरान, तुम मेरे तमाम ख्वाब पूरे होते जा रहे हैं। जो लगता है जैसे ज़िंदगी की मुसर्रतें अब मेरे कदमों में आ पड़ी हैं। काश शिरान, हम यहाँ ज़िंदगी बसर कर सकते। हाँ, हम यहाँ ज़िंदगी बसर करेंगे। और लुई अपने आदमियों के साथ पहुंचकर हमारे बदन छलनी कर डाले। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये इलाका बेहद हसीन है, सुदाशी ने कहा। तुम्हें भूख नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है, सुदाशी ने गर्दन हिलाई, फिर बोली। शिरान, तुम्हारे पास कोई हथियार तो होगा नहीं? क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। पिस्तौल तो नहीं, लेकिन ये खंजर है, मेरे एक दोस्त का दिया हुआ तोहफा। उसने अपने लिबास में से वो खंजर निकालकर उसे दिखाया जो किंग लुई ने उसे बतौर तोहफा पेश किया था। इसके दस्ते पर नन्हे नन्हे हीरे जड़े हुए थे। ठीक है, इस खंजर से तुम जानवरों की खालें उतार सकते हो, लेकिन आज मैं तुमसे फिर वही फरमाइश करूंगी। कौन सी फरमाइश? तुम पत्थरों से जानवर शिकार कर लेते हो ना? हाँ, अब भी कर सकता हूँ, शिरान ने जवाब दिया। तो फिर आज मुझे शिकार का गोश्त खिलाओ, मैं पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। शिरान वैशन अंदाज में हंस पड़ा। फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे तोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। सुदाशी दबे कदमों उसके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़े फासले पर एक पहाड़ी खरगोश नजर आया। शिरान अपनी जगह झुक गया। खरगोश तन्हा था और अपनी ग़िज़ा तलाश कर रहा था। दफतन पत्थर शिरान के हाथ से सनसनाता हुआ निकला और खरगोश फजा में 2-3 फीट उछलकर गिर पड़ा। वो बुरी तरह तड़प रहा था। शिरान उसकी जानिब दौड़ पड़ा। उसने खंजर निकाला और खरगोश को पकड़कर उसकी गर्दन पर फेर दिया। फिर देखते देखते उसने उसकी खाल उतार कर फेंक दी और उसे हाथ में लटकाए सुदाशी की तरफ पलट पड़ा। क्या अब तुम इसे भूनना पसंद करोगी? ज़रूर, सुदाशी ने कहा और उसके हाथ से खरगोश ले लिया। इस एक से काम नहीं चलेगा, तुम आग रोशन करो, मैं दूसरा खरगोश तलाश करता हूँ।
शीरान एक बात तो सुनो, सुदाशी ने कहा। आग जलाने से दुश्मन कहीं हमारी तरफ मुतवज्जो ना हो जाए। ओ ये खाने का वक्त है, फजूल बातें सोचने से पहले पेट की आग बुझा लें, फिर दुश्मनों के बारे में सोचेंगे। सुदाशी कोई जवाब देने के बजाय खुश्क लकड़ियां और घास फूस तलाश करने लगी। खरगोश उसने एक साफ सुथरे पत्थर पर रख दिया था। वो एक तवील जिंदगी ऐसे इलाके में गुजार चुकी थी और इस जिंदगी से मानूस थी, लिहाजा दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने में उसे ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। थोड़ी देर बाद गोश्त भुनने की बू फजा में फैलने लगी। इस दौरान में शीरान दो खरगोश और शिकार कर लाया था और उसे कुछ फासले पर बैठा खाले उतारने में मसरूफ था। पहला खरगोश भूनकर सुदाशी ने शीरान की तरफ बढ़ा दिया और उसे सुदाशी की परवाह किए बगैर उसे खाना शुरू कर दिया। जब सुदाशी ने दूसरा खरगोश भूना तो शीरान पहला खरगोश चट कर चुका था। शीरान ने दूसरा खरगोश भी उसकी तरफ बढ़ा दिया और शीरान उस पर हाथ साफ करने लगा। फिर जब तीसरा खरगोश भूनकर सुदाशी ने उसकी तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ रुक गया। तुम नहीं खाओगे क्या? नहीं, तुम खा लो, तुम भूखे रह गए होगे, सुदाशी बोली। बस बस, फजूल बातों से ग्रेज किया करो, मुझे ये अहमकाना बातें पसंद नहीं। वो खरगोश कम, दो खरगोश कम नहीं होते। फिर वो इधर उधर देखता हुआ बोला, पानी के सिलसिले में दुश्वारी उठानी पड़ेगी। सुदाशी जब खाने से फारिग हो गई तो शीरान ने उसकी तरफ देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। चलो यहाँ से आगे चलो। सुदाशी उसके साथ साथ चलने लगी। ये इलाका इतना हसीन था कि सफर का एक एक लम्हा पुरमसरत महसूस हो रहा था। दोनों बेतकान आगे बढ़ते रहे। उनके पेट भरे हुए थे, अलबत्ता प्यास लग रही थी, लेकिन इस दिलकश माहौल में वो भी ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। किंग लुई के आदमियों का ताहद्दे निगाह कोई पता नहीं था। शायद इस तरफ आने का कोई आसान रास्ता उनकी नज़र में नहीं था। वो दोपहर तक सफ़र करते रहे। जंगल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था। जब वो इस इलाके के इख्तिताम पर पहुंचे तो सामने का मंजर बहुत ही भयानक था। जिस घने और सरसब्ज जंगल से गुजरकर वो आए थे, वो जंगल पहाड़ पर फैला हुआ था और यहाँ पहाड़ का इख्तिताम होता था। इस तरफ नीचे का एक नहायत तुंदो तेज दरिया बह रहा था। उसका पाट इतना चौड़ा था कि दूसरी तरफ निगाह न पहुंच सके। पता नहीं ये कौन सा दरिया था, शीरान इसके मुतल्लिक नहीं जानता था। वो मुतहय्यराना नजरों से इस अजीम शान दरिया को देखते रहे। इसके बहने की रफ्तार बहुत तेज थी। आगे का रास्ता मसदूद था। सुदाशी ने शीरान के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, शीरान अब क्या करोगे? मैं यही सोच रहा हूँ। आगे तो रास्ता बंद है। अगर हम इस पहाड़ी रास्ते पर चलते रहें तो मुमकिन है किसी महफूज मुकाम पर पहुंच जाएं। इस बात का भी इम्कान है कि हम घूम फिर कर फिर लुई के इलाके में जा निकलें। हाँ, इसका तयन तो मुश्किल है कि कौन सा रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा। बहर सूरत, ये जगह बहुत अजीबो गरीब है। शीरान, क्या ये जगह हमारा आइडियल नहीं? क्या मतलब? मैं नहीं समझा। हम इस जगह को भी तो अपना मस्कन बना सकते हैं। क्या रखा है इन गुंजलक बस्तियों में जहाँ जिंदगी बेशुमार उलझनों का शिकार होती है? शीरान को सोचने लगा। उसके ज़हन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। दर हकीकत अगर वो यहाँ कोई पनाहगाह तलाश कर सके तो ये जगह बुरी नहीं। दरिया तक पहुंचने पर कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लिया जाएगा। गोया पानी भी यहाँ मिल सकता है। हर चंद के नीचे उतरना जरा मुश्किल ही था, लेकिन शीरान जैसा आदमी इस सिलसिले में कोशिश कर सकता था। अगर इसके किनारे किनारे दूर तक आगे बढ़ा जाए और कोई ऐसी जगह तलाश कर ली जाए जहाँ से इस इलाके से बाहर निकलना मुमकिन हो तो फिर यहाँ रहना बुरा नहीं। तहम इसने यह मुनासिब समझा कि पहले यहाँ से उतरने का रास्ता तलाश कर लिया जाए, इसके बाद दूसरी बातें सोची जाएं। चुनाचे वो सुदाशी का हाथ पकड़कर इस दीवार पर सफर करने लगा। शाम झुकाई लेकिन चट्टानी सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अलबत्ता रात होने से पहले उन्हें एक ऐसी जगह नजर आ गई जहां ऐसे ढलान थे जिनसे नीचे उतरा जा सकता था। शिरा ने सुदाशी की तरफ देखा और सुदाशी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। चले नीचे चले, उसने पूछा। अगर तुम न चलना चाहो तो यहाँ रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। कैसे लाओगे? कोई चीज़ तो है नहीं हमारे पास। वो हाँ, ये बात भी है, शिरान गर्दन हिलाते हुए बोला। शिरान, तुम बिल्कुल मुतमिन रहो, मुझे जंगलों में ज़िंदगी गुजारने का अच्छा खासा तजर्बा है। मैं यहाँ ऐसे बर्तन बना लूंगी जो हमारे काम आ सके। वो कैसे? पहले हम दरिया के किनारे से मिट्टी हासिल करेंगे, फिर इसको पानी में गूंद कर मैं बर्तन बनाऊंगी। फिर इन बर्तनों को आग में पका लेंगे, इस तरह वो हमारे काम आ सकते हैं। बहुत लंबा प्रोग्राम बनाया है तूने, शिरान मुस्कुराकर बोला। अब तो बनाना ही पड़ेगा, आखिर हमारी आइंदा जिंदगी का दारोमदार इसी प्रोग्राम पर तो है। ठीक है ठीक है, आओ नीचे आओ, पहले पानी पी लिया जाए, शिरान ने कहा और सुदाशी इसका हाथ पकड़कर नीचे उतरने लगी। शिरान सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। इसके जहन में न जाने कौन कौन से शैतानी मंसूबे जन्म ले रहे थे। बहर सूरत वो ढलान तय करके नीचे पहुंच गए। दरिया की तेजी और तुंदी काबिल दीद थी, लेकिन इसके किनारे इस काबिल थे कि वहां से पानी लिया जा सके, और ख़ास तौर से उस जगह दरिया की रवानी में वो तुंदी नहीं रह गई थी। शीरान ने दरिया में पाँव डालकर देखा। किनारे ज़्यादा गहरे नहीं थे। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा
और फिर कमर कमर तक पानी में पहुंचने के बाद रुक गया। बस शीरान, बस, इससे आगे नहीं, प्लीज इससे आगे नहीं। सुदाशी बेकरारी से चीखी और शीरान के हलक से एक वहशाना कहका निकल गया। औरत, मेरी औरत। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया और फिर झुककर पानी पीने लगा। सुदाशी ने किनारे से पानी पी लिया था। वो कुछ ऐसी बदमस्त हो रही थी कि इस पर नशे की सी कैफियत तारी थी। शाम की कजलाहटें झुकाई थी और इन कजलाहटों ने मंजर को कुछ और हसीन बना दिया था। शीरान, मैं नहाऊंगी, जो कुछ तेरा दिल चाहे कर। शीरान वहां से हटकर एक पत्थर पर बैठ गया। तुम भी नहा लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता, शीरान ने जवाब दिया और सुदाशी मुस्कुराती निगाहों से इसे देखने लगी। तो फिर तुम अपना रुख बदल कर बैठ जाओ। क्यों? मैं अपने कपड़े नहीं भिगोऊंगी, वरना इसके बाद मैं क्या पहनूंगी? सुदाशी ने जवाब दिया और शीरान ने बुरा सा मुंह बनाकर रुख बदल लिया। थोड़ी देर के बाद वो लिबास बदलकर शीरान के पास पहुंच गई। आ, ऊपर आ जा, और इसका हाथ पकड़कर ढलान तय करने लगा। दरिया के किनारे इस काबिल नहीं थे कि वहां कोई जगह मुंतखब करते। अलबत्ता ऊपर पहुंचने के बाद शीरान पहाड़ों में कोई गार तलाश करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद इसे एक ऐसी जगह नजर आ गई जहां वो आराम से थोड़ा बहुत वक्त गुजार सकते थे। ये जगह एक पहाड़ी कटाव में एक साइबान की सियासत रखती थी, और साइबान इतनी गहराई में था कि वो इसके अंदर छुप भी सकते थे। अगर साइबान के सामने वाले हिस्से किसी तरह पत्थरों से महफूज कर लिया जाता तो फिर उन्हें दूर से भी देखा नहीं जा सकता था। दोनों ने ये जगह पसंद की थी, लेकिन ये जगह इस ढलान से काफी हटकर थी, और यहाँ वो चट्टानी दीवार सी शक्ल में मौजूद था जैसी वो देखते चले आए थे। यानी यहाँ से दरिया की गहराई खासी थी और इधर से उतरने का कोई रास्ता भी नहीं था। बहरतौर ये जगह उन्होंने अपने क़याम के लिए मुंतखब कर ली। शीरान खोया खोया सा था। सुदाशी ने उसके बाजू पर थोड़ी रख के कहा, क्या सोच रहे हो? शीरान ने गर्दन घुमा के इसे देखा और चंद लम्हात इसकी निगाहें सुदाशी के चेहरे पर गड़ी रही। सुदाशी ने शर्माकर गर्दन झुका ली थी। मैं तुम्हारी हूँ शीरान, मैं तुम्हारी हूँ, वो आहिस्ता से बोली, और शीरान ने एकदम गर्दन झटक दी। नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं सोच रहा। सोचो, जरूर सोचो शीरान, तुम्हें सोचने से कौन मना कर रहा है? सुदाशी वारफ्तगी से बोली और बेइख्तियार अपनी जगह से उठ गई। शिरान ने इसे रोका नहीं। सुदाशी आगे दौड़ती चली गई। इसने एक जगह से थोड़ी सी घास जमा की, फिर छोटे छोटे 5 पत्थर उठा के लाई। पत्थरों को एक दायरे में रखकर इसने घास दरमियान में रख दी और फिर शिरान से उसका खंजर ले लिया। शिरान दिलचस्प निगाहों से इसकी तमाम हरकत देख रहा था। सुदाशी ने अपने दाहिने हाथ की कलाई में एक छोटा सा जख्म लगाया और उसके जख्म से खून की बूंदें टपकने लगी। ये बूंदें उसने घास पर टपका दी थी। फिर थोड़ा थोड़ा सा खून इसने इन 5 पत्थरों पर गिराया और इसके बाद मोहब्बत भरी निगाहों से शीरान को देखने लगी। अपना हाथ दोगे? क्या? क्यों? क्या मेरा हाथ भी काटेगी? अपना हाथ दो, इसने कहा, और शीरान ने हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। सुदाशी ने शीरान की हथेली पर अपने खून के चंद कतरे टिपकाए और फिर जख्म इसकी हथेली पर रख दिया। मेरा हाथ अपनी गिरफ्त में ले लो, इसने कहा, और शीरान की उंगली इसकी कलाई पर जम गई। ये सब कुछ क्या कर रही हो? अब ये हाथ इस घास पर रख दो, सुदाशी बोली, और शीरान इसके कहने पर अमल किया। सुदाशी ने वो 5 पत्थर उठाए, उन्हें एक एक करके शीरान की पिशानी से और फिर अपनी पिशानी से लगाया और फिर उन्हें फजा में दूर उछाल दिया। इसके बाद वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराने लगी। मैं इन सारी हरकतों का मतलब नहीं समझा। मैंने मुकद्दस देवताओं को, आसमान पर रहने वाले खुदा को, तमाम फरीकों को गवाह बनाकर तुम्हें अपनी जिंदगी का पहली और आखिरी मर्द मान लिया है। हाँ शीरान, अब मैं अपने मजहब के तौर पर तुम्हारी हो गई हूँ। तुम मेरे मर्द हो, मेरे शोहर, सुदाशी ने जवाब दिया। वाह, ये एकतरफा शोहर कैसे हो गया? मैंने तो तुझे अपनी औरत नहीं माना। ऐसी बातें मत करो शीरान, ऐसी बातें मत करो। मुझे वो तमाम मुसर्रतें दे दो जो एक औरत का हक होती हैं। सुदाशी बिल्कुल ही बेइख्तियार हो गई और फिर शीरान की आंखों में शरारे नाचने लगे।